Okay, so last class we had discussed how many numbers can be formed where the 5 digits were 1, 2, 3, 4, 5. Now I'm interested in 5-digit numbers, but the digits are 0, 1, 2, 3, 4. अब यहाँ पर एक डिफरेंस कहाँ पर अराइज हो रहा है बेटा? सर जीरो नहीं आ सकता फर्स्ट पहले डिजिट पे जीरो नहीं आ सकता। हाँ जी, so all the numbers 1, 2, 3, 4 they are same for us, है ना? Absolutely no discrimination between them. But 0 we are playing a discrimination. We are doing discrimination to 0. We say 0 you cannot lead us. So 0 cannot come in the first place. That's it. You know. So how many numbers are there? Anyone? repetition is allowed. No repetition not allowed. 5 4 into factorial 4 minus Sir, 1. factorial. 5 in 5 factorial into 4 factorial. No. Okay, raise 5 your hand, please. 4 Raise factorial. your into hand. 4 Okay, factorial. Aryan Verma is saying 5 factorial. Come again, Aryan. No sir, sir I said 4 into 4 factorial. Okay, how you have solved it? Sir, at first place 1, 2, 3 and 4 can come. Very good, impressive. So Aryan is saying, sir, at first place only 4 digits can come. 1, 2, 3, 4. So I'm putting 4 here. After that, I'm left with 4 digits and there are 4 slots are there. 4 digits and 4 slots. So that can be filled up in 4 factorial ways. Okay? So anyone, any other logic you can use to solve this? हाँ जी. सर इसमें 5 को एक्सक्लूड करना था. 5 को exclude, 5 तो है ही नहीं, 5 digits are there. 5 digit 5 is not Okay, there. sir. Any other way? Some other logic. Instead of filling up first slot, what else you could have done? Think on it, think on it. Okay, here comes the hint. Hanji, anyone? Okay, so instead of filling up the slot, you position 0 first. ठीक है, सबसे पहले हम 0 को उठाकर पोजीशन कर रहे हैं, तो 0 कहाँ पर आ सकता है? 0 can come in 1, 2, 3, 4 slots. So once you have positioned 0 somewhere in this in 4 ways, after that you are left with 4 empty slots and 4 numbers which can be filled up in 4 factorial ways. So same question, we could have started with slot first or we could have started with digit first. ठीक है, both way it is same. And you agreed? चलो जी, next one. So using digits 0, 1, 2, 3, 4, how many 5-digit even numbers can be formed? Okay, so this is a learning class. So let's solve it together. I'm interested in how many even digits can be formed. Nati, कैसे करें बेटा? सर लास्ट वाले स्पेस पे 0, 2 या 4 ही आ सकते हैं बस. 0, 2 और 4. Okay, so तो उसमें 3 ऑप्शंस हो गए अवेलेबल. okay, very good. अब जो बचे हैं उनमें 4, 3, 2, 1 होंगे. Okay, so Nati is saying sir, यूनिट स्लॉट पर 3 डिजिट्स आ सकती हैं 0, 2, 4 एंड बाकी 4 डिजिट्स पर 4 स्लॉट्स में 4 डिजिट्स. सो आंसर इज 3 into 4 फैक्टोरियल. ठीक है, आई एम चेंजिंग द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज व्हाई उन्नति's आंसर इज रॉन्ग. उन्नति का आंसर गलत क्यों है? Because 0 can't come at the first place. वेरी गुड. अभिराज इज सेइंग कि सर उन्नति ने वो केस नहीं लिया जहां इन 3 में हो सकता है यहाँ पर जो है अगर 4 हो तो now these digits which are left is 0, 1, 2, 3. Now they cannot be arranged in 4 factorial way. उन्नति समझ में आ रहा है आपको बेटा? यस सर. So solving this you'll have to make 2 cases, isn't it? हम 2 केस बनाकर सॉल्व करेंगे. पहला केस क्या होगा? Where unit digit, ठीक है, यूनिट डिजिट इज 2 और 4. अगर यूनिट डिजिट 2 या 4 में से कुछ है, ठीक है, सो दिस स्लॉट कैन बी फिल्ड अप इन 2 ways. Then
द फर्स्ट स्लॉट, ये कितने वेज में होगा बेटा? 2 ways. फिर से 4 ways. हाँ जी, 4 वेज भी नहीं हो सकता बिकॉज 0 कैन नॉट कम, है ना. सो 1 डिजिट इज यूज हियर, एक डिजिट यहाँ यूज हो गई है, प्लस यहाँ Yes. पर एक डिजिट नहीं आ सकती है, दैट इज 0 कैन नॉट कम. सो दिस इज 3 वेज. ठीक है, अब हमारी सारी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो हट गई हैं. पहली But रिस्ट्रिक्शन at थी, the हाँ unit जी, place also 0 can come. कम अगेन कम अगेन. So 0 can come in the unit place. हाँ बिल्कुल आ सकता है. तो मैंने इसके लिए ना केस बनाए हैं. पहला केस है यूनिट डिजिट पर 2 and 4, सिर्फ इसी केस पर वर्क कर रहे हैं अभी. ठीक है, तो इस केस को फुलफिल करते हुए हमारा आंसर कितना होगा? दिस इज 3 into 3 फैक्टोरियल into 2. ठीक है, क्योंकि 2 जो 0 जो है वो डिस्क्रिमिनेट किया है हमने, तो 0 को आप पूरी पब्लिक के साथ नहीं ले सकते हैं, 0 को आपको अलग से लेना होगा. तो दैट इज 0, यूनिट डिजिट इज 0. ठीक है, अब इसका आंसर कितना होगा बताओ? यूनिट डिजिट पे तो एक ही ऑप्शन है, दैट इज 0 विल कम. ठीक है, अगर 0 यहां पर यूज हो गया है, सो यू हैव गॉट 4 डिजिट्स एंड 4 स्लॉट्स. सो आंसर इज 4 फैक्टोरियल into 1. ठीक है, जो हमने इवन नंबर की बात की थी, इवन नंबर कैन आइदर एंड विद 2 और 4 और विद 0. ओनली थिंग इज वी आर सॉल्विंग देम सेपरेटली इंस्टेड ऑफ टुगेदर. ठीक है, सो टोटल विल बिकम हाउ मच? टोटल नंबर्स, टोटल इवन नंबर्स is 4 factorial ending with 0 plus 3 into 3 factorial. So that is 24 plus this is 18, which is 42. हाँ जी चेक करें. एग्रीड ऑन दिस? Into 2 भी तो है. 3 into Oops, 3. sorry, into 2 is there, right? So this is 36. So my answer is 60. हाँ जी, डन. सर हाँ जी, सर यूनिट डिजिट में 3 into 3 फैक्टोरियल into 2 कैसे आया? ओके. अगर यूनिट डिजिट बेटा इवन नंबर है और यूनिट डिजिट अगर 2 और 4 है, ठीक है, सो यूनिट डिजिट से रिलेटेड आई हैव गॉट 2 ऑप्शंस आर देयर, आइदर 2 और 4. ठीक है, अब 4 में से मेरे पास एक डिजिट तो मेरी यूज हो गई है, लेट्स से मैंने 4 यूज कर लिया. नाउ आई एम लेफ्ट विद दिस 4 डिजिट्स टू बी फिल्ड अप. तो ये Yes, 4 sir. डिजिट्स, अब जो आपका सबसे फर्स्ट डिजिट है उसमें 0 नहीं आ सकता, सो ओनली 3 ऑप्शंस आर देयर. नाउ 0 इज यूज्ड अप. अब 1 2 3 आप कितने बेस में फिल अप करेंगे इन स्लॉट्स में? 3 into 2 into 1. Yes, sir. हाँ जी, एग्रीड? Yes, sir. Yes, Okay, sir. big question of the day. Any other way you could have solved this? So permutation में later on you will see, you know, there are always 3-4 ways, and one of the ways the shortest way to solve it. अगर मैं केसेस ना बनाना चाहूँ, tell me total how many odd numbers are there? Even छोड़ो आप, odd की बताओ. Total how many odd will be there? हाँ जी, यूनिट पे क्या आ सकता है आपका? 1 and 3. 1 and 3, so 2 possibilities are there, है ना. 0 की तो अभी बात ही नहीं हुई है यहाँ पर. ओके, फर्स्ट प्लेस पर 0 नहीं आ सकता, तो कितनी, हाउ मेनी ऑप्शंस आर लेफ्ट? 3. 3. एंड रिमेनिंग 3 स्लॉट्स हैव गॉट 3 डिजिट्स, so that will be 3 factorial. So how many odd numbers will be there? 3 into 3 factorial into 2, है ना. This is 36. Agreed? टोटल नंबर्स कितने थे बेटा? हमने अभी ऊपर किया 5 था factorial. 4 into 4 factorial Yes, total sir. numbers, है ना, 4 into 4. which is 96.
अब आगे क्या करें? Subtract. Very good. So even numbers are total minus odd. ठीक है? So this is 60. Right? So now you'll have to focus only in learning things. When I'm giving questions, solve it. But if you want to make notes, I'll post it, you know, so you can go through the video again. That will be way of revision also, and that will save us time. We can solve more and more and more questions. ठीक है? So last हमने जो किया था that was simple है ना, 1 2 3 4 5. But zero के साथ some complications are arising. So we'll see similar questions we have done in the last class. ठीक है? That is, if zero is clubbed with some number, then how to proceed in that cases. Can be formed such that 2 come before 3. You know, same 5 digits are there. You will answer it in the chat box. I'm expecting 5 wrong answers. Hanji, I've got answers here. 4 factorial in. Okay. So Nishtha, Siddhant, all wrong. So जब starting का जो learning process है बेटा हमारा, that is to make out why your answer was wrong, है ना? आपने कहाँ concept में mistake की? अभिराज wrong. Waiting. Okay. Too much time. Nup. Okay, Saransh is correct. Very good, Saransh. चलो, let's explore the logics. अभिराज, आपने क्या किया बेटा? मैंने 2 and 3 को एक बॉक्स में ले लिया. हाँ जी, थोड़ा सा लाउडली है ना. 2 and 3 को आपने एक बॉक्स में ले लिया. They are supposed to be together. And so the rest digits are 0, 1 and 4. Okay, so what they supposed to be together? Question फिर से read करो. Numbers can be found such that 2 come before 3. Before 3 means, so number 1 0 2 4 3 is a valid number. 2 is coming before 3. ठीक है? I never said how many 5 digit numbers can be found such that 2 and 3 are together and 2 is before 3 or 2 is immediately before 3, है ना? उन wordings में आपका आंसर करेक्ट होता बेटा. Okay, Aryan Verma, Saransh have got same answer. Saransh, आप बताओ. Yes sir. सर वो जैसे कल किया था कि मैंने सर 2 और 3 और 3 और 2 के मतलब 2 केसेस बन रहे हैं जिसमें या तो 2 और 3 होएगा जो रिक्वायर्ड है या फिर 3 और 2 होएगा. So half of the और cases सर are फिर valid. Very good, है ना? Yes What sir. Saransh is तो saying कि
permutation of 2 and 3s in two ways, that is 2, 3 or 3, 2 है ना. These are the two permutations of 2 and 3 are there. So all 96 cases है ना, हमारे 96 cases है, that is 4 into 4 factorial. इनमें से half of them will have 2 before 3, half of them will have 3 before 2. अगर यहाँ पर जो 3 केस होते तो इसे 1/3 will follow the case, 1/3 and 1/3 it will get divided into that format. ठीक है. लॉजिकली देखेंगे जितने भी नंबर्स बन रहे हैं, इन दोज नंबर्स 2 and 3 उनमें हमने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है. ठीक है. इफ योर आंसर इज कमिंग दैट 2 इज कमिंग मोर नंबर ऑफ टाइम्स देन 3, इसका मतलब है 3 नाराज हो जाएगा आपसे. 3 कहेगा मुझे कम बार क्यों आगे रखा है आपने, आई वांट टू बी इक्वली नंबर ऑफ टाइम्स अहेड ऑफ 2. ठीक है. लॉजिकली समझ में आ रहा है आपको. अगर यहीं पर डिस्क्रिमिनेशन, अगर यहीं पर हम 0 को ले लेते तो हमारे केसेस बन जाते. ठीक है. 0 के साथ जो है देन विल हैव टू वर्क ऑन इट. ठीक है. But 2 and 3, there is absolutely no discrimination between them. Half of them 2 will come before 3, half of the time 3 will come before 2. Agreed? हमें ऐसे कर सकते हैं सर, हम ऐसे 4 केसेस बनाएंगे, 2 3 डैश 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 और 2 डैश 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 3 और तो 4, डैश डैश is डैश. it 4 cases? No, it's not 4 cases. So it will be, देखो number of cases जो बन रहे हैं that is 2 3 dash 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 2 dash 3 dash dash 2 dash dash 3 dash 2 dash dash 3, then is dash 2 dash 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 2 3 dash 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 2 dash. समझ गए. तो आप बिल्कुल कर सकते हो ऐसे अगर टाइम पास करना है. ठीक है. पेपर में कोई और क्वेश्चन आता नहीं है तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर लो. बट दिस इज अ वैलिड अप्रोच है ना, आई मस्ट एग्री, इट्स वैलिड अप्रोच. बट 4 नहीं है, बहुत सारे केसेस हो गए. ठीक है सचित, यही बोल रहे थे आप. यस सर. ओके, right. Let's move to the next one. So now the question is changed. Now I am asking how many 5-digit numbers can be formed such that 0 come before 3. ठीक है. Now 0 is a special number. ठीक है. So you just cannot say half of them. So one of the way है ना, I must interrupt in between. One of the ways what Sachit had said है ना, I will say that we can use in this case. यहाँ पर हम कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट जो हमारा एम्प्टी स्लॉट हो गया, देन इज 0 5 डैश 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 0 डैश 5 डैश है ना. सो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ केसेस थोड़े से कम बन रहे हैं. सो 0 5 डैश 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 0 0 5 and dash 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 0 5. So total number of cases are how many? 6 cases are there. आंसर बताओ फटाफट क्या होगा. सर वैसे क्वेश्चन है 0 कम बिफोर 3, सर आपने 5 ले लिया. ओ तो इसको 3 मान लो आप, है ना. सर पूरा देना है या फैक्टोरियल में? जैसे मर्जी दे दो. ये क्या किया आपने सचित. 3 digits are left. हाँ जी सारांश. सचित check it again. Your answer is coming more than total number of cases. इतने तो टोटल नंबर्स नहीं है हमारे पास. हाँ जी उन्नति करेक्ट. अभिराज थिंक ऑन इट. 3 फैक्टोरियल सिर्फ एक नंबर के साथ केस बन रहा है और टोटल 6 पॉसिबल केसेस आ देयर. हाँ जी वेरी गुड सभी का करेक्ट आ रहा है. सो
अगर मैं सिर्फ इस एक केस को देखूं, आई एम लेफ्ट विथ 3 digits now. Those digits are 1, 2 and 4 to be placed in 3 positions. So in how many ways, how many different numbers can I get? 3 factorial. यहाँ पर कितने numbers मिलेंगे? 3 factorial. ठीक है, all of them I am getting 3 factorial. ठीक है, क्योंकि 0 is already used है ना, 0 से related कोई limitation यहाँ पर, there is no limitation here. So my answer is 6 into 3 factorial, which is 36. Agreed? हाँ जी हाँ जी, एक्नॉलेजमेंट, रियाना, देविका, ठीक है सभी, एवरीवन है ना, प्लीज स्टार्ट यूजिंग माइक. छोटा बैच है, इंटरेक्शन इज मस्ट. ठीक है सिद्धांत, अंडरस्टूड? Yes, sir. सर हाउ मेनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम पीएनसी? बेटा इट ऑल वेरीज. ठीक है, तो लास्ट ईयर जो एडवांस का क्वेश्चन था, एडवांस पेपर था, उसमें आउट ऑफ 18 3 वर फ्रॉम पीएनसी, और दूसरे सेट में 1 क्वेश्चन वाज फ्रॉम पीएनसी. So very high weightage if you ask me. So out of 30 chapters, 18 questions were asked, and in those 18 on average 2 questions are from PNC. Okay. Now I'm going to make life difficult. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh my god. So how many numbers can be formed? Total numbers, sir, which can be formed is, fatafat answer. Speak Sir, out. 8 digit C. 8 digit, हाँ जी 8 digit. 7 into 7 factorial. 7 into 7 factorial. In how many of those numbers 0 will be before 7? Can you do it by making cases, जो सचित ने किया था? ठीक है, एक्चुअली ना वो केसेस बनाकर वी कैन डू इट, प्रोवाइडेड यू नो कॉम्बिनेशन, है ना. कॉम्बिनेशन अभी हमने लेकिन पढ़ा नहीं है. कॉम्बिनेशन इज जस्ट सिलेक्शन. So without using combination, if I'm asked to do this question without making the cases, okay, let's see how we can do these cases. Okay, if I'll change the rule and I will give 0 as same weightage as 1 2 3 4 5 6 7. मैं 0 को same weightage दे दी है, जा ऐश कर. तो अब कितने नंबर बन सकते हैं? 8 8 factorial. factorial. 0 has same weightage. So you are saying sir 8 factorial. In 8 factorial में से 7 before 0 कितनी बार आएगा? हाँ जी 8 factorial. 8 factorial by 2. हम बोलेंगे सेम वेटेज तो है, आधी बार 0 बिफोर 7 और आधी बार 7 बिफोर 0. सो Yes. 8 factorial by 2. ठीक है, यहां पर 0 बिफोर 7, 8 factorial by 2. ठीक है, अब ये सब करने के बाद फिर वापस घंटी बजी, नहीं नहीं भाई 0 को सेम वेटेज नहीं देनी है. अगर 0 को सेम वेटेज नहीं देनी है तो कौन सा आंसर मेरा गलत हो जाएगा, 1 या 2? Sir, 1 के 2. 1 के 2. तो सारे आंसर्स वैलिड है ना, सिर्फ Yes. 2 के आंसर्स इनवैलिड हो जाएंगे. ठीक है, सो these are my total cases. These are the cases when 7 comes before 0. So 0 before 7 will be 7 into 7 factorial minus 8 factorial by 2. Yes. So which is 3 into 7 factorial. ये नोट कर लो, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है.
this is what PNC is, to think out of box, solving a question. If you are planning your future in coding decoding, so this is what exactly coding decoding is. कोडिंग डिकोडिंग में पाइथन जो है बेटा वो एक लैंग्वेज है, ठीक है, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, एंड देन यूजिंग दैट लैंग्वेज इज व्हाट इंक्रीजेस योर वेटेज, है ना. इंग्लिश सबको आती है, लेकिन जिसको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है एंड कैन राइट अ गुड लिटरेचर बुक, ठीक है, हैज गॉट लॉट ऑफ वैल्यू इन द मार्केट. 10 million copies will be sold, will be rich. Same thing is in coding decoding, है ना. You know the language, that is Python, plus how to use it. How to use this PNC is one of the example for it. So you know, someone can make a program in 1000 lines and the other person can write it in 100 lines, and then one can write it in only 5 lines. So that 5-line one will have lot of weightage in the market. Okay, I hope it's copied. Let's take the next one. Using digit this, how many 5-digit numbers can be formed with 2 and 3 not together? ठीक है, यहाँ पर पंगे सिर्फ कहाँ पे हो रहे हैं, 0 को लेके पंगे हो रहे हैं हमारे. 2 and 3 not together. Please type your answer. Let me see how many of you are getting it correct. Okay, I'm getting few answers now. Saransh not correct, Abhiraj not correct. Okay, we'll spend some time to make out where you guys are making mistake. Mhm. As usual, Sachit answer is way more than total numbers which are there. Sachit क्या कर रहे हो? Answer 96 से छोटा होगा. So Siddhant is wrong, Vijaya is wrong, and let's discuss, you know, what logic you guys are applying. Devika wrong. Okay, Siddhant, पहले आप बताओ बेटा. Yes, sir. हाँ जी बोलो. सर 2 and 3 को अगर हम क्लब करेंगे तो 4 पॉसिबिलिटीज है. 4 पॉसिबिलिटीज हैं, मतलब 2 and 3 not together. आपने लेकिन together ले लिया है, तो 4 पॉसिबिलिटीज किस वे में बोल रहे हैं बेटा? गलत कर दिया. ओके, लेट्स कॉल सचित. सचित सर टोटल जितने बनेंगे माइनस 2 और 3 जब क्लब करेंगे तो नॉट टुगेदर आ जाएगा. नहीं, आपने क्या किया? आपने यही किया है. आपने जो आंसर पोस्ट किया वो, दैट आई एम मोर इंटरेस्टेड. नो. ओके, लेट्स आस्क सारांश. कैन यू सर मैंने वही किया जो सचित कह रहा था. कैसे किया? आंसर बताओ कैसे किया, बताओ. सर 4 into 4 फैक्टोरियल टोटल नंबर्स होंगे, हाँ उनमें जी. से जब 2 and 3 टुगेदर होंगे वो 4 फैक्टोरियल into 2 हो गया. वो 4 फैक्टोरियल इंटू 2 हो गया. आर यू श्योर? सो व्हाट ही इज सेइंग इज, सर व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, आपकी अप्रोच बिल्कुल ठीक है, फिर सॉल्यूशन लेकिन गलत है. सो माय आंसर इज टोटल केसेस माइनस 2 and 3 टुगेदर, है ना. दिस इज माय आंसर. Now 2 and 3 together, total cases तो 4 into 4 factorial. Now when 2 and 3 are together, अगर मैंने 2 and 3 को together कर दिया है, that is 2 and 3, उसके बाद मेरे पास 3 numbers are there, right? These numbers are 0, 1 and 4. 4. ठीक है. Now 0 cannot come before, है ना, स्टार्टिंग में 0 नहीं आ सकता है, तो यहाँ पर सिर्फ 3 possibilities are left. Now there are 3 slots and 3 objects are there. ठीक है. This is 1, any of the 3 objects are there, so that can be filled up in 3 factorial. Now 2 and 3, in each of the case where 2 and 3 का हमने एक बॉक्स लिया था,
उसमें 2 and 3 can interchange their position. ठीक है, so my answer will be -3 into 3 factorial into 2. ठीक है, solve it to get your answer as 60. Sir, can you wait for 10 seconds? हाँ जी, हाँ जी. विजया, understood? Yes, sir. ठीक है, किसी को समझ में नहीं आया बेटा प्लीज लेट मी नो. सिर्फ हो कुछ नहीं रहा है, हमने डिजिट की जगह अब हमने एक बॉक्स लेकर कर दिया अरेंज. ये जो बॉक्स है 1 और 4 इनको सेम वेटेज है, नो डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, तो कितने नंबर्स बन रहे हैं सर? इसमें हमारे 3 into 3 फैक्टोरियल नंबर बन रहे हैं. ओनली थिंग इज बॉक्स के अंदर दो दो प्रोबेबिलिटीज आ रही हैं, 2 before 3 और 3 before 2. तो ये जो हर नंबर है इसमें डबल नंबर्स हमारे पास इमर्ज होके आ रहे हैं. पहले 2 before 3 था, फिर 3 before 2 किया हमने. तो दीज आर द टोटल नंबर्स आर देयर वेयर 2 and 3 आर टुगेदर. इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट योर आंसर. Sir, can you explain why 2 and 3 are? Rihanna, you are coming very low. Can you hear me now? No, not audible. Is it with everyone? Wait, I'll try. Try again. आप टाइप करो. Anyone else? Any doubt in this? बेटा No, sir. स्टार्टिंग में क्लियर करेंगे तो ज्यादा अच्छा है ना? वंस वी जंप तो फिर बहुत मुश्किल आएगी. Okay, I'm waiting for Rihanna's doubt. Till then, we are taking next question. So using this, how many 5-digit numbers can be found such that there is exactly one digit between 0 and 3? ठीक है, ये क्वेश्चन लेट मी टेक एंड सॉल्व इट हियर. ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, 0 और 3 के बीच में जो है सिर्फ एग्जैक्टली एक डिजिट होना चाहिए, है ना? तो हमने क्या किया, 0 को लिया और ये सेंटर में कोई एक डिजिट, और 3 को लिया और इसको करके हमने एक बॉक्स बना दिया, और उसके बाद दो डिजिट्स और हैं हमारे पास. ठीक है, अब इसके अंदर ये जो डिजिट है ये कितने वेज में आ सकती है सर? ये जो डिजिट है ये 3 वेज में आ सकती थी. ठीक है, तो ये डिजिट हमने 3 वेज में डालते ही फिर हमने इस बॉक्स को बंद कर दिया. ठीक है, नाउ आई एम अरेंजिंग 3 थिंग्स, दिस बॉक्स एंड 2 मोर डिजिट्स जिसमें 0 नहीं है. सो दिस अरेंजमेंट ऑफ कैन बी डन इन 3 फैक्टोरियल वेज. एग्रीड? नाउ 0 and 3 के बीच में जो है देयर शुड बी वन नंबर, दैट्स द ओनली रिक्वायरमेंट. सो 3 कैन आल्सो कम बिफोर 0. सर बट सर 0 थोड़ी ना आ सकता है. हाँ, एक मिनट, लेट मी डू इट, है ना? आई विल आस्क दैट क्वेश्चन. सो माय आंसर विल बी into 2. ठीक है, सो दिस वाज द केस, दिस इज अ वैलिड केस इफ देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन विद 0. अगर 0 के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता तो दिस वाज आवर वैलिड आंसर, है ना? 36. यहां तक सबको समझ में आया? Yes. No, Saransh is saying कि sir, but 0 के साथ we are doing lot of discrimination. So 36 is not the right answer. Which cases we have taken but should not have been taken? सर बस 3 और 0 का लेंगे और इंटरचेंज वाला नहीं लेंगे. अच्छा जी, Saransh is saying sir सिर्फ 3-0 लेंगे but 0-3 नहीं लेंगे. Is he correct? If the number is -0-3-, then it will be a valid number Sir. fulfilling our condition. सर मतलब हमें 3 बार अलग अलग लिखना पड़ेगा जिसमें इंटरचेंज वाला सिर्फ पहले केस में नहीं लिखेंगे. Okay, so he is making separate cases. I am saying why you are making separate cases. Saransh, just subtract those which are invalid. Minus invalid. Invalid कौन से केस हैं Saransh? सर 0-3-. Only these are invalid, right? Starting with 0. तो ये कितने केसेस थे? 1. सर Only 1. 0, 3, सर. है ना? Now 0-3-.
है ना. Such cases will be 1 2 4 1 4 2 4 1 2 4 2 1 2 1 4 2 4 1. So these were 3 factorial cases which we had taken wrongly, है ना, because they were starting with 0 and thus they were invalid, and thus my answer is 30. Why 2 and 3 are in the box when question said not together? Okay. First check this one, है ना, if it's understood or not. No doubts, no doubts. So जो discrimination वाला part था, we have taken the cases first where we were not discriminating and then we subtracted the invalid ones. Okay. So Rihanna is asking, sir, why we have taken 2 and 3 together when question is saying not together. So Rihanna, जो total number of cases हैं बेटा, total cases को हमने 2 categories में divide किया है, 2 and 3 together plus 2 and 3 not together. कोई और possibility तो है ही नहीं, या तो together होंगे या नहीं होंगे. ठीक है. हाँ जी रियाना, agreed. So solution for 2 and 3 not together is nothing but total minus 2 and 3 together. ठीक है. We use this way because this is easy to calculate, this is easy to calculate. ठीक है. Thus we took this approach. Okay, welcome. Let's see here. Arrangement of 6 letters such that it has consonant at each end and vowels are not together. Sir, what is consonant? Which are not vowels. Very good, thank you. So vowels are your A and E. हाँ जी, मिलकर सॉल्व करते हैं बेटा, है ना. We'll learn a lot in this. ठीक है. तो सबसे पहले देखो, there are two ways of solving. या तो मैं पहले vowels को उठा लेता हूँ, क्योंकि vowels के पास limitation है, they cannot be at the end. Plus vowels are not together, है ना. So vowels की जो positions है, that can be either these two position or these two position or these two positions. इनके अलावा तो positions possible नहीं है. ठीक है. So total ways in which vowel can be put, ठीक है, these are either A E or A E or A E. Agreed on this? Yes, 3 sir. के अलावा भी कुछ possible है? हाँ जी, हाँ जी. Any other possibility? ये interchange कर सकते हैं सर आपस में. ठीक है. So A and E can be placed in 3 into 2 or 6 ways. आंसर क्या होगा फटाफट? निष्ठा इज नॉट करेक्ट. हाँ जी, हाँ जी. वॉवल्स तो प्लेस हो गए. कॉन्सोनेंट्स के लिए एंड वाला पार्ट जो है वो खाली पड़ा ही हुआ है ना. सो व्हाट विल बी आंसर? भाई वॉवल्स प्लेस हो गए हैं, 4 एम्प्टी स्लॉट्स.
for 4 consonants, है ना? Very good, Unnati. So answer will be 6 number of ways vowels can be placed into number of ways consonant can be placed. हाँ जी, रिस्पॉन्स थोड़ा सा लैग कर रहा है. चलो लेट्स सी. सिद्धांत आपने कैसे किया बेटा? सर 6 केसेस नहीं बन रहे थे और टोटल केसेस 6 फैक्टोरियल है, तो 6 फैक्टोरियल माइनस 6. 6 कौन से नहीं बन रहे थे? सर A and E can be placed in 3 into 2. जस्ट अ मिनट. हाँ जी, अगेन A and E. Sir, was a statement A and E can be placed in 3 into 2 or Okay, 6. so what Siddhant did was, Siddhant said कि सर A and E को अगर मैं ends में डाल दूं, ठीक है, so total 4 factorial ways are there in which the other numbers, other digit letters can be arranged. So he said, sir, my answer is 6 factorial minus 4 factorial. सिद्धांत ने कहाँ पर मिस्टेक की है? Sir, A and E could interchange also. इंटरचेंज कर सकते थे. अभी भी आंसर गलत है भाई. Why this answer is still wrong? सर एंड्स में तो सर कॉन्सोनेंट्स आना था ना, तो टोटल माइनस एंड में वॉवल्स, बट आंसर गलत है. सोचो सोचो. ये लो जी, सिद्धांत पूरी क्लास आपके साथ खड़ी है. दे आर सेइंग ये तो करेक्ट है. हाउ अबाउट द केस व्हेन A is here but E is here? Is this valid case? बोलो. No. है ना? तो ये तो No, केस sir. माइनस ही नहीं किया आपने. ठीक है, so many cases are there which you have not subtracted. ठीक है, so this answer is wrong. सिद्धांत followed why this is wrong? Yes, sir. ठीक है, निष्ठा ने तो 6 फैक्टोरियल आंसर ही दे दिया है विदाउट एनी लिमिटेशन, तो दैट इज रॉन्ग. ठीक है, अदर वे वी कुड हैव डन इट कि स्टार्टिंग से हम कंडीशंस को फुलफिल करते हैं. ठीक है, इट सेज कॉन्सोनेंट एट ईच एंड. तो यहाँ पर अगर मैं सिर्फ फर्स्ट स्लॉट को अगर मैं फिल कर रहा हूँ, इन हाउ मेनी वेज? 4 वेज. एंड इस स्लॉट को फिल करें तो 3 ways. 3 वेज, है ना? Now it says vowels are not together. So you have got 2 consonant, 2 vowels. They can be arranged in how many ways? 4 factorial. But इसमें subtract कौन सा करेंगे? In which vowels are together. Vowels are together. तो vowels को अगर हमने together बना दिया, so you have got a box of AE. Vowels together के कितने केस हैं? 3 factorial into 2. 3 factorial into 2. So my answer is 4 into 3 into 4 factorial minus 3 factorial into 2. ठीक है, second approach I am saying again, first condition we full, so end has to be with consonant, so 4 ways in first slot, 3 ways in the last slot. Now in the center you are left with 2 consonant, 2 vowels. Vowels not together is total cases minus when they are together. ठीक है, so that's how center 4 lots can be filled up. ठीक है, आई थिंक बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है माइंड पर. चलो, अरेंजमेंट ऑफ 6 लेटर्स सच दैट इट हैज बी आफ्टर ए बट बिफोर सी. तो लास्ट क्लास में हमने किया था क्वेश्चन. सो लेट मी टेक हेल्प ऑफ प्रांतिक. प्रांतिक हेल्प करोगे बेटा?
हाँ जी, 6 लेटर्स कितने वेज में अरेंज होंगे बेटा? सर 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल वेज में, है ना। ये जो 6 फैक्टोरियल वेज हैं, इसमें ए बी सी की अरेंजमेंट, ठीक है, व्हेन वी आर डूइंग, ठीक है, सो दोज अरेंजमेंट कैन बी ए सी बी और बी सी ए, बी ए सी, सी ए बी एंड सी बी ए। ये जो अरेंजमेंट है ए बी सी की, वो 3 फैक्टोरियल वेज में है। दैट इज इन 1/6 of the number, A will be before B and B will be before C, है ना। This is what it's saying. So हमारी जो फुलफिलमेंट है वो कौन कौन से केसेस कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 कौन से केस कर रहे हैं बेटा फुलफिलमेंट? B Only after A but before C. only one. Only one, है ना। B is after A but before C. So my answer will be how much, Prantik? सर 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। 6 factorial upon 3 6 हाँ जी, और फैक्टोरियल। 3 factorial, ठीक है। 6 factorial upon 3 factorial. I hope this case is very clear with everyone. So which is 5? Yes. Which is 5 factorial. Very good. Right, next one. How many 5-letter word can be made, है ना? So this in the beginning I have told you. अभी हमने जो cases किए हैं, those are 6 letters and 6 slots. So 6-letter word we were making. Now this is 5-letter word. So whenever 5-letter or 4-letter or 3 letters is coming, ठीक है? So you'll have to go through the question again and you may have to make cases defining the what is limitation is given. So how many 5-letter words can be made from A, B, C, D, E, F such that vowels are not together? पहला केस क्या होगा बेटा? देखो 3 केस बन रहे हैं, है ना। फर्स्ट केस विल बी देयर इज नो ए इन इट, उसमें ए है ही नहीं, जो 5-letter वर्ड हमने बनाया है। तो अगर कोई ए नहीं है तो क्या इस लिमिटेशन का कोई मतलब है? नो सर। No, sir. कोई मीनिंग ही नहीं है ना। बिकॉज ए इज नॉट देयर, तो ए और ई टुगेदर कैसे होंगे? तो कितने आंसर, क्या आंसर होगा हमारा? हाउ मेनी वर्ड्स कैन Sir, बी मेड? 5 factorial. 5 फैक्टोरियल। 5 5 factorial. लेटर वर्ड बनाना है और 5 लेटर्स हैं, तो 5 फैक्टोरियल। सेकंड केस क्या होगा बताओ? E is not there. नो ई, Sir, तो दिस इज 5 फैक्टोरियल। थर्ड केस क्या होगा? सर एक कॉन्सोनेंट निकाल। कॉन्सोनेंट निकाल दिया। सो ए एंड ई बोथ आर देयर, ए एंड ई दोनों ही हैं, ठीक है। अब दोनों हैं तो एक कॉन्सोनेंट को निकाला आपने, है ना। तो यहां पर लिख लेते हैं कॉन्सोनेंट रिमूव्ड, कॉन्सोनेंट रिमूव्ड। अब कॉन्सोनेंट कौन सा हो सकता था हमारा? कॉन्सोनेंट कैन बी आइदर बी, सी, डी और एफ, ठीक है। हर एक के लिए अगर अलग अलग केस बनाएंगे तो लेट्स से नो बी, नो सी, नो डी, नो एफ, तो टोटल 4 केसेस बनेंगे हमारे पास, ठीक है। नाउ यू आर लेफ्ट विद 2 vowels and 3 consonant and vowel should not come together. आंसर क्या होगा बेटा? टोटल केसेस माइनस vowels are together, vowels को टुगेदर कर दिया हमने ए ई, और फिर हमारे पास 3 स्लॉट बचे हैं। हाँ जी, हाँ जी, एनीवन? 4 factorial into 2 factorial. into 2 factorial, ठीक है। इन तीनों का सम इज माय आंसर, 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 4 into 5 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है। सो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़े से लिमिटेड आते हैं, जहां पर नंबर ऑफ लेटर वर्ड्स मेड इज स्मॉलर,
ठीक है, क्योंकि उसमें केसेस ज्यादा बन जाते हैं and it becomes little lengthy, but such questions will take afterward. One question I have taken to tell you future may what all we'll be discussing. Okay, any doubt in this? चलो जी, एक रिपीटेशन वाला. Please type your answer in chat box. I am expecting majority of you will do it correctly. Repetition is allowed है ना, ये ध्यान रखेंगे. Very good, impressive Sachit. Saransh, very good. Unnati, correct. Let's see from Devika. Tanvi, answer beta. Lianka. Siddhant, it's wrong. Repetition is allowed. Harpreet. Very good, impressive Devika. Lianka, choti si mistake. Nishtha, correct. Very good, Nishtha. Okay, let me call Lianka. Aryan Verma, correct. Lianka. Yes, sir. बेटा फर्स्ट उसमें कितने लेटर्स आ सकते हैं आउट ऑफ 6? Sir, 5. ए बी सी डी ई एफ, 6 में से किसी को भी मैं बिठा सकता हूँ बेटा. वाई Sir, 5? but 5 letter word बनाना था इसलिए मैंने 5 लिया. 5 लेटर वर्ड है, मींस देयर आर 5 स्लॉट्स आर लेफ्ट. सिर्फ 5 Yes, sir. स्लॉट्स है ना. हर स्लॉट में कितनी पॉसिबिलिटी है? इन द स्लॉट आइदर ए विल बी देयर, बी सी डी ई और एफ, Yes, sir. है ना. तो 6 पॉसिबिलिटीज आर देयर. नेक्स्ट, रिपीटेशन तो अलाउड है, तो अगेन 6 पॉसिबिलिटीज. 6 6 6. माय आंसर इज 6 raised to power 6 5. raised to 5. Right. Yes, sir. Can you take a question related to ascending order? Okay. Digits में ले numbers में ले लेते हैं. So 1 2 3 4 5 6 7. How many 7-digit numbers such that 1 2 3 are in ascending order? Beta, PNC is one of the biggest topic है ना, and some says it's scary, but it's interesting, very interesting. Sachit, you wanted such type of question? Yes, sir. ठीक है, और यहाँ पर 4 भी ले लेते हैं. ठीक है, अगर मैं, चलो इस 4 को छोड़ो ना, वरना लंबा सा हो जाएगा. सचित, अगर मैं ये 1 2 3 को छोड़ दूं बेटा, ठीक है, लेट्स से आई हैव मेड वन पॉसिबल नंबर है ना, दैट नंबर इज 4-5 6-7. ठीक है, अब ये जो सेट ऑफ नंबर है, ठीक है, इस कॉम्बिनेशन में हमारे पास कितने नंबर्स आ रहे हैं? हमारे पास नंबर है 1 2 3 1 3 2 2 3 1 2 1 3 3 2 1 3 1 2. ठीक है, whenever you are fixing the position of 4 5 6 7, there are 6 possibilities are there related to 1 2 3, out of which only 1 and 1 possibility is allowed where 1 2 3 are in ascending order. Okay.
ठीक है, तो बेसिकली यू कैन डिवाइड ऑल द नंबर्स, ये जो 7 फैक्टोरियल नंबर्स हैं इनको आप 6 कैटेगरीज में वो कर सकते हैं सेपरेट। 6 कैटेगरीज में पहली कैटेगरी वेयर द ऑर्डर ऑफ 1 2 3 इज दिस, सेकंड वे ऑर्डर ऑफ 1 2 3 इज दिस, ठीक है, लाइक दैट। आउट ऑफ दो 6 कैटेगरीज ओनली वन इज फुलफिलिंग आवर कंडीशन, राइट? यस। अब यहां पर आप कंडीशन कुछ भी दे सकते हैं, है ना? कंडीशन और क्या हो सकती थी? चलो सेम क्वेश्चन प्लीज, है ना एवरीवन, आई नीड आंसर फ्रॉम एवरीवन एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड one wrong answer. If all correct, then I am loser. 1 before 2 and 1 before 2 and 3. Answer in terms of 7 factorial into हाँ जी, very good Siddhant. Oh, it has taken a lot of time to answer this question. Saransh, use bracket, can't make out what you have written. Unnati is correct. सर वो ऊपर के लिए है वो। Okay, correct. Others, परिचय, आंसर बेटा। हाँ जी निष्ठा, वेरी गुड। बट क्या हो गया, पेपर पेन लेकर नहीं बैठे हो आप लोग? हेलो जी, वन रॉन्ग आंसर इज कमिंग। चलो जी अभिराज माइक पे आओ बेटा। Yes, टोटल sir. 7 फैक्टोरियल नंबर्स थे बेटा, है ना? आई नीड 1 बिफोर 2 एंड 3। 1 जो है 2 और 3 से पहले आना चाहिए, ठीक है? क्या ये वाली कंडीशन हमारी यहाँ पे फुलफिल हो रही है? 1 2 3 में हाँ जी हो रही है। क्या यहाँ पर फुलफिल हो रही है? Yes, sir. हाँ जी, Yes, sir. यस। यहाँ पर No. नो 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 हाँ सर, वो नो। by 3 होगा 7 हाँ factorial. जी, तो आंसर इज 7 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल और हाउ मेनी आर फुलफिलिंग? 2 आर फुलफिल्ड, ठीक है? सो दिस इज माय आंसर। Okay, very good, very good. Okay, before we go to the grid question, ठीक है? Question. I'm interested in word सर committee. हाँ जी, सर अगर ऊपर 2 3 एंड 4 तीनों होते तो सर हम उनके फिर मतलब फैक्टोरियल बना के लेते ना फिर तो। So you are saying 1 2 3 4 5 6 7. So 1 before 2 3 4, यही बोल रहे हैं आप, यस सर, बिकॉज है ना? 6 हो जाएंगे, मतलब हाँ 6 जी, हाँ अपॉन जी। 4 तो फैक्टोरियल। देखो लॉजिकली पढ़ेंगे, लॉजिकली हम क्या कह रहे हैं कि 7 फैक्टोरियल टोटल केसेस थे अपॉन 1 2 3 4, इनको आपस में अगर हम मिक्स कर रहे हैं तो टोटल 4 फैक्टोरियल केसेस आ रहे हैं, आउट ऑफ विच फेवरेबल कौन से हैं? 1 तो पहले आ गया, 2 3 4 जैसे मर्जी आ जाए, तो फेवरेबल आर 3 फैक्टोरियल, यस सर, ओके। है ना? अब ये चीज जो है वो बहुत बड़े उसमें आ सकती है, खाली डिजिट्स क्यों, आप लेटर्स ले लें ए बी सी अप टू जेड, ठीक है? तो यस सर, 26 लेटर के कितने वर्ड्स बनेंगे सो दैट ए कम्स बिफोर बी सी डी ई एफ जी एच? So 26 letters के how many words were there? 26 factorial upon. अब यस A, B 3 4 5 6 7 8, है ना? This 8 letters are there जिनके कॉम्बिनेशन के हमें थोड़ा सा पंगे आ रहे यस हैं, ठीक है? उन 8 फैक्टोरियल वेज में हमने जो डिवाइड किया नंबर्स को, उसमें फेवरेबल कौन से हैं? A is coming before all of these. So
if A is fixed, so these all can permute in 7 factorial way. So this becomes our answer. Yes. Thank you, sir. Welcome. So committee, how many? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. So question is how many 9 letter words can be formed? Ji, very good, very good. Nishta, very fast. Abhiraj, hello, hello. Something is repeating. आपने वीडियो वापस चेक नहीं की है, सिद्धांत ने भी नहीं की है. Sachit correct, impressive, Unati correct. So this we have done in the last class. Please check for me. हाँ जी, सर मैंने भी भेजा था. हाँ जी, yours correct. कैसे? So only 2 is wrong, Abhiraj and Siddhant. तो बेटा यहाँ पर जो doublets हैं, है ना? So this we have done. अभी तक हमने केस किए थे where all objects were different, है ना? All elements were different. All elements were different. ठीक है? अब हम केस कर रहे हैं where all elements are not different, है ना? तो यहाँ पर हमने लास्ट क्लास में किया था. That answer is 9 factorial by 2 factorial because 2 m's are same. तो ये जो परम्यूट करेंगे उनसे हमें कोई नया वर्ड नहीं मिल रहा है. So upon 2 factorial where t's are same, 2 e's are same, so into 2 factorial. ठीक है? So if I am saying how many words can be made from A, B, B, and C. So total 7 are there. So 7 factorial upon 4 factorial into 2 factorial. This is total permutations are there. ठीक है? So Siddhant and Abhiraj बेटा first video एक बार वापस है ना go through करो, solve the questions by yourself. So more practice is there. Okay, question. Okay, so we have got A, B, C, D, E, and okay, no two A are together. Okay, पहले मिलीजुली सरकार चलाते हैं. So first tell me if I'm saying the answer is total minus A are together. ठीक है? So total is 7 factorial by 3 are of one kind, that is 3 factorial. Minus when all A's are together, तो मैंने उन A's को जो आपस में bind कर दिया है. So how many objects or elements are there now with me? One box and 4 letters are there. This can be permuted in 5 factorial ways. Agreed on this? Club 2 A's. हाँ जी. So we will club 2 A's, not 3 A's. Okay. So it's no 2 A's are together, है ना? So what Abhiraj is saying कि sir यहाँ पर आपने वो माइनस किए जहाँ पर all 3 A's are together, है ना? But what about those cases where 2 A's were together? Only 2 A's were together. ठीक है? तो वो जो केसेस बनाएंगे तो केसेस बनाकर जो है it is becoming little lengthy. So now what we are going to do is we are going to do it logically. ठीक है?
सर हाँ जी, सर मैं एक मेथड से कर रहा हूँ पर मेरे को समझ नहीं आ रहा आगे कैसे करना है। हाँ बोलो। सर मतलब जैसे कल हमने डिविजिबिलिटी लिखा था सर, अगर हम उसी फॉर्म में लिख दें, मतलब एक एक डैश छोड़ के अगर ए लिख दिया और सर फिर वो मतलब उसमें वो डाल दिया 4 into 3 into 2 into 1 and sir then we multiply it by 2, but sir I'm not sure if that's correct. Okay, let me first take it, है ना, maybe you are doing exactly same but not able to solve it. So approach है ना, please check the approach here बेटा. क्या is there any limitation with B C D E? No sir. No limitation. So in how many ways B C D can be arranged? 4 factorial. 4 factorial can be arranged in 4 factorial ways. So if I write BCD like this, B, C, D, E. So where exactly A's can come? Either in this position, this, or this. Yes sir. है ना? अब क्वेश्चन ये है कि इन ब्लैंक्स में A कितने वेज में आ सकते हैं? Three. Sir 2 ways. 2 ways, 3 ways. Hello. Mic testing. देखो. A, A, A. A, A, A. Sir 6 ways. A. 6 ways, is it? A, A, A. A, A. Will you say it 6 ways? Sir 5. 5. अरे और भी आ रहे हैं भाई. अगर मैं A स्टार्टिंग में ना लूं, I'll take this A here. I'll take this A here. Is it 5, 6 or more than that? 5 factorial. 5 factorial. All A's are same है ना. A's you can't distinguish the A's. ठीक है. मुझे बताओ जहां पर मैंने अगर 3 A's डाल दिए तो बाकी क्या डाला मैंने? बाकियों में क्या डाला? बाकी ब्लैंक्स में कुछ नहीं है ना. So nothing is what I am putting, nothing. So it is basically एक ही जगह पे हो सकता है. AN. इनको आप कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? 5 factorial ways. बाय हेलो. Sir by 3 factorial into 2 factorial into 3 factorial. है ना. वो जो नथिंग है उसको निकाल देना. क्या जरूरी है उसको छोड़ना? ठीक है. सो माय आंसर इज B C D E can be arranged in 4 factorial ways and then 3 A's will go with 2 nothings in 5 factorial by 3 factorial 2 factorial ways. ठीक है. ये सिर्फ परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट जो है, आई वांट टू मेक इट स्ट्रांग फॉर यू. अदरवाइज व्हेन इट कम्स टू कॉम्बिनेशन you will find this is becoming very easy. Yes sir, I was doing this only. Okay, good. I could make out you are doing more or less same thing. चलो आगे बढ़े इसमें. Yes sir. Okay, so last time we were doing grid question, है ना. चलो from point A to B, in how many ways I can reach? So we were saying this is we have to take 5 steps in the north and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 steps in the east. So 5 north and 7 east. What will be the answer? 12 factorial by 5 factorial into 7 factorial. No, 5 factorial and 7 factorial. These are the number of ways you can reach from A to B. If you have any doubt, please raise your hand now. है ना. 10 minutes आगे grid के questions हैं. You will be disappointed. Sure, clear for everyone. Okay then. Chat box. In how many ways I can reach from A to B?
पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज, फाइंड दिस न्यूमेरिकली फाइंड करेंगे। तो 12 11 10 9 8 7 फैक्टोरियल तो ऊपर नीचे कैंसिल हो गया है। सो 5 4 3 2 1, so 5 2s are 10 and 4 3s are 12, so this is 72 and 72, that becomes 792. ठीक है, चलो now do this. लास्ट क्लास में किया था हमने क्वेश्चन, याद है कुछ ऐसा? Okay, we are doing together. Anyone how to proceed? सर हाँ जी बोलो। सर पहले हम इसको करेंगे टोटल कितने वेज हो सकते हैं शॉर्टेस्ट वेज, टोटल, ओके, माइनस कितने सी से जा रहे हैं। वेरी गुड, इम्प्रेसिव, टू गुड। टोटल कितने वेज हैं? 12 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, एंड देन शी सेइंग कि सर जो सी से जा रहे हैं वो माइनस कर देते हैं, है ना? तो सी से जाने वाले कौन से हैं? पहले ए टू सी तक फाइंड करेंगे। ए टू सी में 3 नॉर्थ एंड 3 ईस्ट, दैट इज 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, and then c to b again is, this is 4 and 2 6 6 factorial by 4 factorial 2 factorial. Impressive, very good, too good, too fast. Ding ding ding. Okay, but life is not that easy, है ना? और पंगे लेने की हमारी आदत पुरानी है। अब क्या करें? हाँ जी, हाँ जी। तो बेटा ऐसे में ना, देयर इज वन मोर अप्रोच, दैट अप्रोच इज मैनुअल काउंटिंग। आप मैनुअली काउंट करेंगे, ठीक है? बट दैट मैनुअल काउंटिंग यू हैव टू डू विद इन 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर करनी है। सो दैट मैनुअल काउंटिंग हैज टू बी सिस्टमैटिक मैनुअल काउंटिंग, ठीक है? सो लेट मी जस्ट टेक इट हियर। अगर मैं यहाँ पर बेटा एक छोटा सा एग्जांपल लेकर करूं, ठीक है? लेट्स टेक दिस बॉक्स वर देयर। चलो जी, अब मुझे फटाफट बताओ, in how many ways you can reach from A to B? A to B कितने ways में आप जा सकते हैं? 4 सर not 7 फैक्टोरियल 7 अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 4 factorial 3 factorial, very good, this you solve it comes as 35, ठीक है? अब ये 35 मैनुअली देखो फास्ट कैसे कैलकुलेट होगा। इस पॉइंट पर आप कितने वेज में आ सकते हैं? ए से स्टार्ट कर रहे हैं, शॉर्टेस्ट पाथ आपको लेना है। हाँ जी, चलो इतना क्यों सोच रहे हो? 1 वे, यहां से आप डायरेक्टली ऐसे आ गए, घूम फिर के आओगे तो वो शॉर्टेस्ट पाथ थोड़ा ना वो आपका, है ना? सो यहाँ पर कितने वेज में आ सकते हैं आप? 2 वेज। 2 वेज। अच्छा बता दो मुझे जरा, 2 वेज कौन से हैं? 1 वे, ओनली 1 वे ना? अच्छा One way सर, इस कौन सा? पॉइंट से वहां पर हाँ, बस यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आ गए, दैट्स ओनली 1 वे। और यहाँ पर 1 वे, सर 1 वे, यहाँ पर 1 1 1 एंड 1। क्वेश्चन अराइजेस, यहाँ पर कितने वेज में आ सकते हैं आप? कहाँ पर सर? 2 वेज में, है ना? हाँ जी। सो क्वेश्चन वाज फॉर दिस पॉइंट बेटा, है ना? सो यू कैन कम इन 2 वेज। आप कहेंगे सर यहाँ पर 1 वे में आए थे और उससे यहाँ पर आ गए, या यहाँ पर 1 वे में आए थे उससे यहाँ पर आ गए। सो टोटल बिकम्स हाउ मेनी? 2 वेज, है ना? हियर इन हाउ मेनी वेज यू कैन कम? 3 ways. 3 ways. 3 ways
कैसे बोल रहा है सिद्धांत? सिद्धांत कह रहा है सर पहले यहाँ पे आ जाओ 2 वेज में, उसके बाद यहाँ से यहाँ पर सीधा चले जाओ। तो 2 वेज ही हो गए, यहाँ पर 1 वे में आए आप और यहाँ से यहाँ पे सीधा चले गए। सो दिस बिकम्स 3 वेज, है ना। आप पॉइंट x पर 3 वेज में आ गए, पॉइंट y पर 1 वे में आए। सो पॉइंट z पर कितने वेज में आ सकते हैं आप? 5। हेलो, 3 + 1 5 कैसे हुआ? पहले आप x पर आए 3 वेज में और x से आपने सीधा यहाँ चले गए। So 3 ways Yes. in which x was there and 1 way in which 1 was there. So total 4 ways. 4 ways. भाई z पर आने के लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा? पहले z पे आने के लिए पहले x पे आना पड़ेगा। Yes, sir. x से होकर आए तो 3 ways और y से होकर आए तो सिर्फ एक ही रास्ता है, ये तो हमने अभी किया ही है। तो to reach z there are only 4 ways, ठीक है। वापस यहाँ पर कितने वेज में आ सकते हैं? That is this plus this. Total will be how much? नहीं आया समझ में? 3 ways. 3 ways, है ना। You reach here only in 1 way and then you proceed here. Another way to reach this point M was you reach here first. यहाँ पर कितने ways में आ रहे हैं? 1 and another is this 2. तो 2 ways में you came here, then you reached on top. So total 3 ways. This will be 3 + 3, that is 6 ways. This will be 6 + 4, that is 10 ways. This point will be 1 + 3, that is 4 ways. This is how much? 10. 10 ways. 10. This is how much? 20. 20. This is 5 ways. 5. This 50. 50. 15. and this 35. 35. You know, this is manual counting. So manual counting you can do systematic way if you proceed within 1 minute, है ना। If you ask me here, so I'll say 1 1 1 1. These all are 1 ways, है ना। मैनुअल काउंटिंग का आएगा तो छोटा आएगा, इतना बड़ा ग्रिड नहीं आएगा। दिस पॉइंट इज 2 ways, दिस पॉइंट 3 ways, दिस पॉइंट 4, दिस इज 5, दिस इज 6 7 and 8. दिस पॉइंट, हाँ जी, 3 ways. This is 4 5 6. This point, हम्म 5. 5 कौन सा? बता दो जरा, हमें भी सबसे ज्ञान प्राप्ति हो। यहाँ से तो आ गया मैं 4 वेज में। 5th वे कौन सा था बेटा? 5th तो ये नीचे वाला बनता है ना कुछ, बट नीचे से तो हम आ ही नहीं सकते, यहाँ पर नीचे कुछ है ही नहीं, तो ओनली 4 वेज, ठीक है। यहाँ पर 2 वेज में आ सकते हैं, या तो इधर से या फिर इधर से, बट ये वाला भी काउंट नहीं किया है। सो इन हाउ मेनी वेज दिस इज पॉसिबल? दिस 4 ways. 4 वेज ओनली। अब यहाँ पर अगर हम ऊपर वाले पार्ट में आ जाते हैं, दिस इज 4 is this and 4 is this, so this becomes 8 ways. मैनुअल काउंटिंग समझ में आ रही है आपको? सिर्फ जैसे मैं अगर बेटा इस पॉइंट की बात करूं, इन हाउ मेनी वेज यू कैन रीच दिस पॉइंट, ठीक है। तो हाँ जी, यू विल से सर आइदर यहाँ से आएंगे या यहाँ से आएंगे, है ना। सो दिस इज योर 9 ways आर देयर, राइट। एंड दिस इज 6 and 9, दिस इज 15 ways, ठीक है। So this is 8 and 9 17, this is 15 and 17 32. So like that you will proceed with manual counting. Done. सर ये बस मैनुअली हो सकती है? नहीं, लॉजिकली भी हो सकती है, बट इट विल बी मोर इंटेंसिव, वो ज्यादा दिमाग खराब करेगा आपको, ठीक है। मैनुअल इज शॉर्टर देन लॉजिकल अप्रोच, क्योंकि बहुत सारे केसेस बन जाएंगे यहाँ पे ना। किसको डाउट है मैनुअल काउंटिंग से रिलेटेड? तो मेरे को ओके
सो एक और केस ले लेते हैं. Okay, so I'm interested for manual counting. ठीक है, in how many ways we can reach, इसको भी हटा देते हैं, from A to B. ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा. हर पॉइंट पर अप्रोच दो हो सकती हैं. शॉर्टेस्ट की अगर बात करेंगे, आइदर यू आर कमिंग फ्रॉम वेस्ट और यू आर कमिंग फ्रॉम साउथ, है ना. या तो आप किसी भी पॉइंट पर जो है, अगर ये पॉइंट लूं मैं बेटा, या तो आप यहाँ से आएंगे या यहाँ से आएंगे. शॉर्टेस्ट अप्रोच में आप इस तरफ से नहीं आ रहे होंगे. एग्रीड ऑन दिस? So instead of calculating for B, first I'll calculate what are their close points to A. So this point you can reach only one way. There is no other way you can reach this point. ठीक है, that's the shortest way की अगर हम बात करें. This point is one way, this is one way. ये वाला पार्ट समझ में आया बेटा? Yes, sir. ठीक है. Now if I'll talk about this point, इस पॉइंट पर बेटा मैं ऊपर से तो आऊंगा नहीं, है ना. I'll come only from this side or this side. So अगर मैं पॉइंट B से होकर C पर जा रहा हूं, so there is B पर अगर मैं वन वे में आ सकता हूं, तो B से C भी only one way is there. So total one way will become from B to C, and same from D to C also one way. ठीक है, so this 1 plus 1 total ways I can reach C is 2 ways. Same way में this point I can reach is either from here or from here. This point I can reach in one way. So this point I can reach in two ways. So total I can reach this given point in how many? 3 ways. This point 1 plus 3 is 4 ways. This is 1 plus 4 is 5 ways. Understood? इस पॉइंट पर बताओ, मैं यहां से तो आ ही नहीं पा रहा हूं, ये रास्ता तो है ही नहीं. So I am only able to reach from here. और यहां पर मैं वन वे में पहुंचा हूं, तो दिस ऑल्सो इज वन वे. चलो टेल मी ऑन दिस पॉइंट. इस पॉइंट का बताओ. वन वे. हेलो, फिर से देखो. टू वे. हाँ जी, या तो नहीं, टू वेज क्यों बेटा? या तो मैं लेफ्ट से आ रहा हूं या फिर नीचे से आ रहा हूं. तो लेफ्ट से मैं कितने वेज में पहुंच रहा हूं? 3, एंड दिस इज 1. 3 plus 1 makes it 4 ways. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Excuse me, sir. हाँ जी, Sir, can you please scroll to the previous question? एक मिनट, let me complete this. So this is 1 plus 1 is 2, 4 plus 2 is 6. ठीक है. Now this was 5 and this is 6. So total ways is 11. This question. Yes, sir. ठीक है, यहाँ पर देखो 4 and 5. This point will be 9. 9 and 6. This point will be 15. किसका डाउट था बेटा? क्लियर हुआ? हाँ जी, हाँ जी. सर हाँ जी बेटा. सर अभी जो इसके पहले वाला था उसका आंसर क्या था? ये जो क्वेश्चन Thank you, ये sir. हमने, हाँ सर, वो मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी. ओके, 11 इज द आंसर कमिंग. थैंक यू सर. हाँ जी, सारांश क्लियर है डाउट? नहीं सर, मुझे नहीं था सर. अच्छा, ओके, चलो, है ना. आई विल टेक 15 मिनट्स मोर. ओके, प्लीज नोट डाउन, है ना. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस.
आप कहीं पर किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो यू विल फाइंड इसके फॉर्मूलाज गिवन होते हैं, बट once you will finish up here you will say कि formulas are not required. सर इस साइन का मतलब क्या होता है? हाँ जी, साइन का मतलब क्या है भाई? बिलोंग्स टू। belongs हाँ जी, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है यहाँ पर? होल नंबर। होल नंबर्स, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो सॉल्यूशंस हैं दैट इज 7 + 3 + 0 दैट्स अ वैलिड सॉल्यूशन, और 2 + 7 + 1 दिस इज आल्सो वैलिड सॉल्यूशन. हाउ मेनी सच सॉल्यूशंस आर देयर? ठीक है, लॉट्स ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर, मैनुअली यू कैन नॉट कैलकुलेट. So PNC is what we'll do. So to find this answer, last class में हमने क्या किया था बेटा? सर हमने बार्स बना दिए थे और हमने प्लस वंस के 2 लिए थे, साइन लिए थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and we took 2 plus signs. यस सर। ठीक है, we said that this is permutation of 10 ones are there and 2 plus signs are there. Each time you permute them, आप जैसे ही इनको permute कर रहे हैं, ठीक है, that permutation will give me one of the result. Here the result is 4 + 1 + 5. If you permute it again, plus 1 1 1 1 5 6 7 8 plus this is 0 + 8 + 2. Every time you permute this plus and ones, you are getting your answer. So total how many objects are there? 12. 12 Out of which 10 are of one kind, 2 are of another kind. 12 can be arranged in 12 factorial ways, but because 10 are of one kind and 2 are of another kind, you have to divide it. This is your answer. सर this- लेकिन सर हाँ जी, x y = 10 होता फिर अगर अगर x × y × z = 10. अगर इनटू होता, ओके, तो वो इनटू वाला केस ना बेटा यहाँ पीएनसी में नहीं है, ठीक है, बट विल टेक इट, अभी नहीं लेंगे. अब यहीं पर अगर मैंने ये बताया लेट से a + b + c + d इज इक्वल टू 7. चलो फटाफट आंसर बताओ. A B C D आर होल नंबर्स. हाउ मेनी वंस आर देयर? 7 ones. And how 7 many and plus? 3 3 pluses plus. Answer 10 in terms of factorial factorial. sir. Type 10 फटाफट. चलो speak out 10 factorial by. 7 3 factorial factorial into into 3 7 factorial. ठीक है, फॉर्मूले की तो कहीं जरूरत नहीं पड़ी ना हमें. अगर इसका फॉर्मूला गिवन भी है तो उसको याद करके क्या करेंगे? ठीक है, तो वैसे इसका होता क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला आई विल टेल लेटर ऑन, है ना, वो कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला आएगा. किस किस का सर वो फॉर्मूला जो बनाओगे ना? हाँ जी बोलो. सर वो जो मल्टीप्लिकेशन वाला केस था सर, आप उसकी बात कर रहे हो कॉम्बिनेशन में? ना 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 ना, समवन इज आस्किंग सर इसका फॉर्मूला क्या होगा. ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है दैट फॉर्मूला जब हम कॉम्बिनेशन करेंगे तो उसमें फॉर्मूला डिनोट होगा. ठीक है, अभी परम्यूटेशन कर रहे हैं तो इसमें फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा है. ओके हाँ जी, सिद्धांत यहाँ डिफरेंस क्या आ गया बेटा? सर एक्स वाई जेड आर नाउ नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर्स, तो इसका क्या मतलब है? उनकी वैल्यू दैट 0 से नहीं शुरू होएगा, 1 से शुरू होएगा. 0 नहीं हो सकती. यस सर. तो आप लॉजिक, तो आपने लॉजिक क्या लगाया? सर 1 से 9 तक सारे नंबर में बार बना लेंगे तो 9 बार और 2 प्लस साइन. 9 बार क्यों? मतलब ये हमारे पास 10 है डिजिट, तो 10 वंस आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 प्लस साइंस आर देयर. हाँ जी, इसके परम्यूटेशन में एक्स वाई जेड को 0 0 भी हो सकता है मिल रहा हो, तो वो केसेस हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है. यहाँ तक समझ में आ रहा है?
तो सर इसका मतलब ये हुआ कि प्लस और प्लस जो है वो साथ में नहीं हो सकता। प्लस और प्लस साथ में नहीं हो सकता, और प्लस जो है वो एंड्स में भी नहीं हो एंड में सकते, नहीं हो सकता। एंड में हो गए तो भी गड़बड़ है। यस सर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर चॉकलेट की बात करूं, है ना, 3 लोगों को मुझे कितनी चॉकलेट देनी है? 10 चॉकलेट देनी है। कंडीशन क्या है? कोई मतलब ऐसा कोई नहीं होगा जिसको नहीं मिलेगी। हाँ, तीनों को कम से कम एक देनी है। तो मैं डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले क्या करूंगा? डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हाँ जी, हाँ जी, तीनों को एक एक दे दो ना, झंझट ही खत्म। भाई ये कंडीशन है ना, तीनों को एक एक देनी है कम से कम। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम सेइंग कि लेट्स गिव देम वन वन चॉकलेट फर्स्ट। अगर मैंने इनको वन वन चॉकलेट दे दी है, सो मेरे पास बची 7, and I will say now x dash, y dash and z dash they belongs to whole number. ये 0 हो सकते हैं अब। यस सर नहीं सर। समझा। ओके बेटा, हम नेचुरल नंबर बोलते ही हमारे पास अब कंडीशन क्या है कि x, y और z की मिनिमम वैल्यू जो है वो 111 है। ठीक है, उनको एक 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 चॉकलेट मिलनी चाहिए। अगर मैं उनको पहले ही एक एक चॉकलेट दे दूं, अब मेरे पास 7 चॉकलेट बची, क्या अब कोई कंडीशन है? नहीं सर। नाउ देयर इज नो मोर कंडीशन। सो एग्जैक्टली दैट आई एम डूइंग। मैंने x को एक चॉकलेट दे दी, तो x डैश, y डैश और z डैश रह गया मेरे पास। ठीक है, मतलब सेम पीपल आई हैव टू गिव नाउ 7 चॉकलेट्स, बट नो लिमिटेशन। 0 दूं या नहीं दूं फर्क नहीं है, क्योंकि एक तो मैं पहले ही दे चुका हूं। ठीक है, सो बेसिकली these two questions are same, ये दोनों सेम है। ठीक है, and my answer will be what? Speak out, speak out. How many ones are there? 7. 7 ones. And how many plus? 2. 2 are there. So my answer is 9 9 factorial. factorial by 7 factorial. है ना, बट लाइफ के बारे में एक चीज काफी सर्टेन है। व्हाट इज दैट? Life is not easy. इट इज नॉट इजी। तो ये लो जी। सर मेरे को एक डाउट है पिछले क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो। सर इसको हम होल नंबर से माइनस नहीं करेंगे जितना होल नंबर पे केसेस बन रहे थे, जितने नेचुरल, सर जितने टोटल केसेस बन रहे थे 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, उससे माइनस नहीं करेंगे? नहीं नहीं बेटा, ये वो केसेस थोड़ना है कि जहां पर लोगों को एक भी नहीं मिला है। ये तो वो केसेस हैं जहां पर मैंने एक एक ऑलरेडी दे दिया चॉकलेट, तो उसके बाद जो है आई एम नाउ डिस्ट्रीब्यूटिंग द चॉकलेट्स अगेन। मैंने आपसे पूछा कि आप जो है, आपको चॉकलेट देनी है अमन, राज और मोहन को, है ना, कौन सी? डेयरी मिल्क क्लियर 10 है, ऑल सेम। कंडीशन क्या है? सबको एक एक जरूर मिलनी चाहिए। तो आप क्या कहोगे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो शुरू करने से पहले कि सर सबको एक एक चॉकलेट दे दो, खत्म बात। उसके बाद फिर हम चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे, है ना। अब कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि मुझे एक चॉकलेट नहीं मिली। सो नाउ द क्वेश्चन इज लेफ्ट कि 7 chocolates are there and that needs to be distributed in these 3 students. Now there is no limitation. अमन जो वो, उसको अगर मैंने एक भी नहीं दी 7 में से, तो कभी बोल नहीं सकता कि मुझे एक भी नहीं मिली, क्योंकि एक तो मैं पहले दे चुका हूँ, अलॉट कर चुका हूँ। ओके सर। है ना, सो जो कंडीशन थी वो कंडीशन फुलफिल कर दी हमने, पहले इनिशियली फुलफिल कर दी, एंड देन वी आर फाइंडिंग द नंबर ऑफ एज। यस सर। ओके, है ना, 5 minute सेशन मोर। आई वांट यू टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन टू मी। देखो यहाँ पर बेटा, अब वैलिड केस कौन सा है? 7 + 3 + 0, क्या ये वैलिड है? Yes, sir. Yes sir. If I am saying 5 + 2 + 1, Yes. Yes 2 sir. + 1 + 0, Yes sir. 0 + 0 + 0, Yes sir.
है ना, वैलिड है ना? यस फॉर्मूला नहीं करेंगे, कोई लॉजिक से देखेंगे। चॉकलेट की टर्म में बता दो इसका क्या मतलब है? सर हम किसी को सर दैट 10 से कम चॉकलेट्स बांटने 3 लोगों को। ना थोड़ा और अच्छे से। सर 10 या फिर 10 से कम चॉकलेट्स बांटने 3 लोगों को। मेरे पास ना 10 चॉकलेट है ना, 3 लोगों में देनी है, मेरी मर्जी जितनी मर्जी दूं। मेरे पास 10 चॉकलेट हैं, 3 लोगों को देनी है, एंड इट्स माय विश कि मैं जिसको जितनी मर्जी दूं। मेरे को किसी की शक्ल पसंद नहीं आ रही है तो मैं तीनों को ही 0 0 0 दे दी। अब इसमें मेरे को फटाफट बता दो, 3 लोगों को मैंने चॉकलेट दी 5 + 1 + 0, तो ये बाकी की 4 चॉकलेट कहाँ गई? हमारे कहीं पास नहीं है। गई। कहीं नहीं गई? हेलो, कहीं नहीं तो मतलब कहाँ पर है वो 4 चॉकलेट? हमारे पास। हमारे पास, मेरी पॉकेट में। तो ये चॉकलेट 3 लोगों की जगह कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई? 2 लोग। 4 लोगों में। 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई ना, और 4th वन इज मी। सो यस क्वेश्चन इज, आई एम नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग 10 चॉकलेट्स इन 3 पीपल नाउ। जो चॉकलेट्स बच गई वो 4th मेरे पास आ गई। सो माय आंसर इज W + X + Y + Z = 10. Both will have same answer. हाँ जी, अंडरस्टूड? यस सर। कितना होगा आंसर, फटाफट बताओ। सर 13 factorial by 3 factorial into 10 Very factorial. good. 10 ones and 3 plus sign. So total 13 items, out of which 10 are of one kind, 3 are of one kind. That's your answer. ठीक है, ये चारों इक्वेशन के अलग अलग फॉर्मूलाज मिल जाएंगे आपको, बट गो विद लॉजिक। लॉजिक क्लियर है, कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है आपको। इसमें लास्ट केस कौन सा बनेगा? लास्ट केस नेचुरल नंबर्स, है ना। अब ये तीनों बच्चे जो है रोंदू हैं, कह रहे हैं एक एक चॉकलेट तो चाहिए ही हमें। So x dash plus y dash plus z dash less than equals to 7, where x dash y dash z dash belongs to whole number. Whole numbers. आगे क्या करें? सर W एक और हो जाएगा। हाँ जी, W is me, myself and Mary. I am getting the remaining chocolates. This is equals to 7. So 7 ones and 3 plus sign. My answer is 10 factorial by 7 factorial and 3 factorial. सर IIT लेवल वाले क्वेश्चंस। ये हाँ सर ये है। हाँ जी, और खतरनाक लेवल माना जाता है ये। सर तो आप इसी की बात कर रहे थे आज? हाँ जी, अब इसी में देखो, इट ऑल डिपेंड्स है ना, आपको अगर लॉजिक क्लियर है तो इसमें कुछ भी नहीं है, और लॉजिक क्लियर नहीं है तो अगर आप वीडियोस देखेंगे तो लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस बना रखी हैं, हाउ टू सॉल्व दिस इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो आप 11th में IIT की क्लासेस लोगे अलग से? बेटा आई विल टेक, मैंने पोस्ट किया था, फॉर फ्यू चैप्टर्स आई विल टेक IIT लेवल, ओनली फॉर फ्यू चैप्टर्स, है ना, एंड रेस्ट विल बी CBSE एंड CBSE प्लस। ठीक है, सो टू मेक योर बेसिक स्ट्रॉन्ग, आपके बेसिक्स अगर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो फिर आईटी का लेवल भी कुछ नहीं है, सिर्फ हवा है और कुछ नहीं है। ठीक है, सो लेट्स एंड द सेशन। नेक्स्ट क्लास संडे को होगी, एंड